Hello student, welcome to Micromed Education and today we are going to discuss regarding microscope. अभी माइक्रोस्कोप को टॉपिक को पूरे डिटेल में समझने से पहले ये समझ लेते इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे. So the questions generally asked are either a short note on any one type of microscope like fluorescent microscope, compound microscope, phase contrast, dark ground, electron microscope, something like that. The frequently asked is fluorescent microscope. Then what are in 2 marks question like what are the application of fluorescent microscope or electron microscope, what are the maximum resolution achieved by particular microscope or with various objectives. Then the most common definition is what is resolution और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कितना रिजोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना होता है, like this. So we'll discuss individually regarding individual type of microscope. So before proceeding to our microscope, first understand the concept of relative size and their detection device. अब समझिए कि ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ अराउंड मिलीमीटर 1 मिलीमीटर तक की ही चीज जो होती है और एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व. In this figure you can understand and check this around 1 millimeter can be appreciated by a human eye. तो फिर जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप बोलता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब चीज कितना डिटेक्ट कर सकती है? अंडरस्टैंड दैट कैन बी डिटेक्टेड ओनली अप टू 0.5 टू मिनिमम 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर मिनिमम बोला है, उससे ऊपर का भी चीज दिखती है. ठीक है, तो वो क्या आता है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर में कौन कौन से आता है? दीज आर द बैक्टीरियाज. नाउ अंडरस्टैंड यू कैन नॉट अप्रिशिएट वायरसेस अंडर द ब्राइट फील्ड और सिंपल माइक्रोस्कोप. उसके लिए चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज वायरसेस आर in nanometer, the size in nanometer, so you cannot appreciate with a normal routine microscope. Now अब ये appreciate कैसे होता है? So the frequently asked definition is what do you mean by resolution? So resolution होता क्या है? It's an ability to distinguish two different point as the separate point. अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, इन दोनों को आप अलग देख रहे हो ना, क्यों? आपकी आईज उसको उतना रिजोल्यूशन पावर है. सो दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट मीडिया का अलग अलग होता है. ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू एयर. वो एनहांस करता है उसका रिजोल्यूशन पावर. दैट्स व्हाई 100x दैट इज ऑयल इमर्जन पावर हैज अ बेटर रिजोल्यूशन compared to your scanner and high power and low power. Now moving to our next slide, we already discussed in our first lecture that this is Sir Antony van Leeuwenhoek, father of microbiology. He used first microscope to discover bacteria. Microscope किसके लिए यूज होता है? To detect and observe very tiny objects जो अपनी unaided eye से नहीं देखी जाती, that is in 0.1 millimeter. Now आप सबने फर्स्ट ईयर में even in your school days you observe the microscope, you know the parts of the microscope, so I'm not going in details of that. This is called base, this is a light source, this stage where you can put your slides. Then you have a fine adjustment and coarse adjustment screw. Here you will have a condenser and the diaphragm which will control the light, and they are very important, especially condenser it changes with different type of microscope. Then you have a eyepiece and various objective. Now these objectives are of 4 different type. 4x that is scanner, 10x that is your low power, 40x is your high power, and fourth one is 100x that is your oil immersion. Now we'll discuss the magnification. So how much magnification? So first you have to understand the terminology. M is equal to M1 and M2. M is the total magnification. The M1 is linear magnification of objective lens and M2 is of eyepiece. M1 into M2.
तो आईपीस का मैग्निफिकेशन तो हमें पता ही है, दैट इज 10x, तो 10 टाइम्स उसने कर दिया। डिफरेंट डिफरेंट का कितना है ऑलरेडी डिस्कस, 4x, 10x, 40x एज वेल एज 1000 मीन्स 100x, दैट इज 1000। तो यहाँ पे देखिए स्कैनर से देखेंगे तो 40x में आपको ऐसा स्ट्रक्चर देगा विद द हेल्प ऑफ लो पावर, दैट इज 10x। तो वो मैग्निफिकेशन कितना टाइम हो गया 100x। तो अब ये जो उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स भी आप देख रहे हो, 40x जब आया तो 400x मैग्निफिकेशन हो गया। अब आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हो, और इन विद द हेल्प ऑफ ऑल इमर्शन लाइक दैट इज 1000x। नाउ दिस पोर्शन इज कैन बी इजीली विजुअलाइज। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन एंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अचीव्ड बाय अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो मिनिमम आएगा आपका 40 एंड मैक्सिमम आएगा 1000x। और किसी भी तरह से इसको मुलाटे पिला के घुमा के भी एमसीक्यू आए या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें ये कंसेप्ट अब समझ आ गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे अब ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले नाम ही बता देता है वही काफी है, वो बोलते हैं ना नाम ही काफी है। ब्राइट फील्ड में द फील्ड इज ब्राइट and you can observe the bacteria, everything is looking bright. Things are better appreciated with the help of staining. In case of dark field you don't require any staining techniques. However here जो important चीज है वो है उसका कंडीशन। एक सेंट्रल एपर्चर होता है तो सीधे लाइट रेज ट्रांसमिट नहीं होते, लाइक इन अवर ब्राइट फील्ड रिफ्लेक्ट करके होता है एंड स्कैटर लाइट ही ट्रांसमिट होती है। तो बैकग्राउंड ही पूरा डार्क होता है एंड द ऑर्गेनिज्म और द ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड, इसे कहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। आगे डिटेल में पढ़ते हैं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, अभी आपको हमने बोला कि शॉर्ट नोट तो आएगी, तो शॉर्ट नोट में लिखना क्या है, कितना करना है, सब कुछ इस वीडियो के एंड में आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें एक पीडीएफ है, उसमें प्रॉपरली सब कुछ मेंशन है। But yes, definitely you have to draw this diagram. If you draw this diagram, you will get 2 marks from the diagram as well. Don't write इधर से ये लाइट ट्रांसमिट हुई, इसको हुई, ये नहीं चाहिए, ये ड्रॉ करो, more than enough. Rather, with drawing you will get better marks compared to your text. So understand करते हैं। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होगा, सोर्स होगा लाइट का, वहां से कंडेंसर में हीट हुए, स्पेसिमेन में, ऑब्जेक्टिव लेंस से सीधा आई में, ब्राइट फील्ड में दिखा। अभी डार्क ग्राउंड में क्या ऑलरेडी देखा हमने, यहां पे देखिए आप ओपेक डिस्क का। सो द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड, तो ओनली लाइट रेज विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिमेन, क्योंकि सीधे सीधे तो कोई नहीं जा रहा है, यहां से साइड में से लाइट रेज जा रहे हैं, स्पेसिमेन में से जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा वही ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगा, तो वो ही इल्यूमिनेट होगा, रेस्ट ऑफ द बैकग्राउंड ब्लैक दिखेगा। दैट्स व्हाई this is the principle of dark ground microscopy. Now phase contrast, phase contrast में क्या है, इसमें भी यही एक है, सेंट्रल अपर्चर डिस्क होती है, स्पेसिमेन में होता है, मगर इसमें डिफरेंट फेजेस में से जाते हैं। सो क्या होता है, रिफ्रेक्टेड लाइट एंड अनरिफ्रेक्टेड लाइट बोथ विल ट्रांसमिट एंड देयर इज अ डिफ्रैक्शन प्लेट एक्स्ट्रा। यहां से एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एक डिफ्रैक्शन प्लेट है, तो जो रिफ्रेक्टेड और अनरिफ्रेक्टेड दोनों लाइट रेज पास हो गए, उस हिसाब से डिफरेंट रिफ्रैक्शन के हिसाब से फेजेस दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप बेटर अप्रिशिएट कर पाओगे। यहाँ पे देखिए, कैन यू अप्रिशिएट हियर द फेज करना, दोनों लाइट रेज गए तो कुछ चीज थोड़ी ओपेक और डार्क दिखी, कुछ लाइट दिखी। सो यही है द कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट फेज और मीडिया, उससे विजुअल इमेज उस तरह से बने, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फेस कंट्रास्ट। डार्क ग्राउंड में देख लीजिए क्या था, यही था सारा, है ना, इससे ही रिफ्लेक्ट हुआ जो वही दिखेगा, बाकी का ब्लैक दिखेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा इल्यूमिनेट हो रहा है, ब्राइट, द सराउंडिंग स्ट्रक्चर इज, द बैकग्राउंड इज ब्लैक। नाउ लाइट माइक्रोस्कोपी, yes, staining technique is required, but it is not like you can use a wet mount or without staining. Also you can observe bacteria as well as parasite and cells in your light microscopy or bright field microscopy. I hope the concept is clear now. So अभी दूसरे माइक्रोस्कोप में जाते हैं, that is fluorescent microscope. उससे पहले ये एक क्वेश्चन समझ लो, 2 मार्क के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, what
define fluorescent and give the example of fluorescent microscope or application of fluorescent microscope, uses of fluorescent microscope, या सिंपली 2 मार्क्स में फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल लिख दो फिगर ड्रॉ करके, ठीक है। तो क्या होता है, कोई पर डाई या कोई सब्सटेंस होता है, when it is in ground state and it is excited by a light, it absorb a photon and reach to the excitation phase। यहाँ पे गया, अब एक्साइट हुआ है तो क्या वहां पे तो नहीं रहेगा ना कभी तो वापस आएगा। तो वो जब एक्साइटेशन फेज से वापस नीचे आ रहा है, इट विल रिलीज अ लाइट एज अ फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंस। आप समझ गए, पहले एक्साइट हुआ, एक्साइट होके वो एक स्टेज पे बढ़ा, मगर जब वापस रिलीज होके वापस ग्राउंड स्टेज पे आ रहा है तो वो इमिट द लाइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंस। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ फ्लोरोसेंस। अब फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, हम देखते हैं कैसे। तो ये है, आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, यू हैव टू ड्रॉ इट, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड ड्रॉ इट। अभी है क्या यहाँ पे समझिए, ये आपका स्टेज है, यहाँ पे स्पेसिमेन रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, मगर यहाँ पे सीधे सीधे नीचे से लाइट नहीं आती कंपेयर टू योर रेस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। लाइट सोर्स इज देयर, एक्साइटेशन फिल्टर तो चाहिए बिकॉज फ्लोरोसेंस जनरेट करना है, ठीक है। तो एक्साइटेशन फिल्टर से लाइट एक्साइट हुई, डायक्रोमेटिक मिरर से वो चली सीधी स्पेसिमेन में, स्पेसिमेन में से वो रिलीज होगी, देयर इज एन इमिशन फिल्टर इज देयर, और यहां से फिर ऑक्यूलर लेंस में से वो डिटेक्ट होगी। तो बेसिकली यूवी और ब्लू लाइट एक्साइट द फ्लोरोफोर्स व्हिच एमिट द विजिबल लाइट्स। अभी इसमें मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा, 1000 है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड यूजेस। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए ये यूज होता है बेसिकली फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में। तो कौन कौन से फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, यूज फॉर ट्यूबरकुलस बेसिलाई, ओरामिन रोडामिन यूज करके फ्लोरोसेंट डाई से ये यूज कर सकते हैं। इवन अ फंगल स्टेन कैन बी यूज, उसमें कैल्कोफ्लोर डाई यूज होती है, इसको कैल्कोफ्लोर स्टेनिंग टेक्निक्स बोलते हैं। एज वेल एज वायरल एंटीजन डिटेक्शन टेक्निक, फिश फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक्स, इन सब के लिए भी ये यूज हुई जाती है। सो इम्यूनोलॉजी में भी इसका इम्प्लीकेशंस है, एज वेल एज फॉर द बैक्टीरियल डायग्नोसिस, रैपिड डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज के डायग्नोसिस, इम्यूनोलॉजी रिलेटेड ज्यादा है। फिश फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिड, ये सब उसके एप्लीकेशन है। सो इतना ही आपको लिखना है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में, मगर ये फिगर है, इसी के 3 मार्क्स है, आप समझ लीजिए, 2 मार्क एप्लीकेशन के है। दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर 6 marks of fluorescent microscope. Now next slide. So in next slide we'll discuss electron microscope. अभी 2 टाइप की होती है, एक TEM होता है, एक SEM होता है। ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें ट्रांसमिट किया तो उसमें आपको क्या दिखेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखेगा उसके अंदर का। और स्कैनर, तो उसमें क्या दिखेगा, आपका सरफेस डिटेल्स दिखेगी, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसमें नॉर्मल लाइट तो यूज नहीं होगी, इसमें प्रिंसिपल में क्या आएगा, इट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ लाइट। सो देखते हैं आगे। बेसिकली प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्रांसमिटेड थ्रू अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन टू क्रिएट हाई रिजोल्यूशन इमेज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अचीव हो जाता है। मेनली यूज, मैंने क्या बोला था, वायरस कैन नॉट बी विजुअलाइज बाय लाइट माइक्रोस्कोप, तो उसके लिए ये यूज होता है। ऑर्गेनल्स, टिश्यू, अल्ट्रा थिन सेक्शंस, इन सब बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना है आपको, तो वायरस की इंटरनल मॉर्फोलॉजी को देखना है, तो क्या यूज होता है, टेप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है, मगर मैंने बताया था वैसे पूरा स्कैन करके होता है। यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से बी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम है जो यहाँ से और ऊपर से भी एक आता है, तो पूरा उसका विजुअलाइजेशन होता है, 3D इमेज जनरेट होती है, 50,000x का मैग्निफिकेशन होता है। सरफेस मॉर्फोलॉजी के यूज होता है, बायोफिल्म, स्पोर्स के स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, इन सब के लिए मेनली यूज होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल सरफेस के माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर के लिए। सो दिस इज सफर माइक्रोस्कोपी का
we have completed, but the most important thing is take home message. By this we can conclude and remember our whole topic. So सबसे पहले resolution की definition याद कर लेते हैं. क्या थी? It's ability to distinguish two distinct point, two close point as to two distinct one or two separate point. Different microscope में आपको light microscope, routine bacterial observation के लिए, फ्लोरोसेंट टेक्निक से यूज होती है, फ्लोरोसेंट डाइज यूज होती है, और बेसिकली इम्यूनोफ्लोरेसेंस और टीबी के लिए. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में टेम और एसएम होता है. टेम फॉर ट्रांसमिशन, बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिए, वायरसेस के लिए लेके. हाउएवर सेम इट इज फॉर सरफेस एम, तो 3D पॉइंट्स के और हो गए. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या यूज विजुलाइज होता है? लाइव अनस्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, थिन स्ट्रक्चर के, बैकग्राउंड डार्क होता है, स्पेशली यूज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ स्पायरोचिट्स, दैट इज ट्रिपैनोमा पैलिडम, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, बिकॉज वो बहुत थिन होते हैं. And then phase contrast microscope, it converts different in the refractive index of the cellular component. मैंने कहा था दो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, तो कंपोनेंट जो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हुआ तो उसकी वजह से डिफरेंट फेज होगा, उसकी वजह से डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट जनरेट होगा. इसके लिए स्टेनिंग टेक्निक इज नॉट रिकमेंड. इट इज यूजफुल फॉर द ऑब्जर्विंग ऑफ द इंटरस्ट्रक्चर लाइक cell organelles, bacterial spores and inclusions. Thank you so much. You will please check its PDF that is available in the link given. So you will reach to Google Drive from where you can download your PDF. We'll meet in our next lecture. Don't forget to subscribe my channel and also follow me on my Insta, because on that regularly you will get update when I am releasing my new video. Thank you so much. We'll meet in your next video. Bye bye.